السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم حساب کا تیسرا سبق اعداد و شمار کا استعمال، ڈاٹا ہینڈلنگ، تو اس سبق کی مشقوں کو حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم۔ تو اسی سلسلے سے جڑی جو اس سبق کی آخری مشق ہے، یعنی مشق نمبر 3.4 کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ تو اس سبق کے کل 6 پارٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان 6 ویڈیوز کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ان تمام ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے مشق نمبر 3.4 کو حل کرتے ہیں۔ تو مشق نمبر 3.4 کا جو پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں بتائیے کہ کون سے ہونا ضروری ہے، ناممکن ہے، کون ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ تو یہاں پر چند بیانات دیے گئے ہیں، تو ان بیانات میں کون سے بیانات کا ہونا ضروری ہے اور کون سے ناممکن ہے اور کون ہو سکتے ہیں مگر ضروری نہیں، چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا بیان جو دیا گیا ہے، آپ آج گزرے کل سے زیادہ بڑے ہیں۔ تو آج کیا ہے؟ گزرے کل سے زیادہ بڑے ہیں، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم پچھلے دن سے آج کیا ہے؟ بڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو بات ہے یہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے، ایک اچھالے گئے سکے میں اوپر ہیڈ آئے گا، یعنی سکہ اچھالنے پر ہیڈ آئے گا، تو یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ آئے گا، ٹیل بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہوگا، ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں، ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ نیکسٹ جو تیسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے، ایک پانسا کو پھینکنے سے اوپر 8 آئے گا۔ تو پانسا پھینکنے پر 8 کا آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہاں پر پانسا پھینکنے پر 8 کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ پانسے میں صرف کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کیونکہ پانسے میں صرف 1 سے لے کر 6 تک نشانات ہوتے ہیں۔ تو پانسا پھینکنے پر 8 کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ پانسے میں صرف 1 سے لے کر 6 تک نشانات ہوتے ہیں۔ جو اگلا سوال ہے، یعنی چوتھا سوال، اگلی ٹریفک لائٹ ہری ہوگی۔ تو اگلی ٹریفک کی لائٹ ہری ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ تو اس کا جو جواب ہوگا، ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ نیکسٹ جو پانچواں سوال ہے، کل بادل ہوں گے۔ تو کل بادل کا ہونا بھی یہاں پر یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے بادل آئیں گے مگر ضروری نہیں، ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو بیانات دیے گئے تھے، تو اس میں ہمیں یہ بتانا تھا کہ کون سے بیانات کا ہونا ضروری ہے، کون سے ناممکن ہیں اور کون سے ہو سکتے ہیں مگر ضروری نہیں۔ تو
पहला जो बयान था कि आप आज कल से ज़्यादा बड़े हैं, तो ये होना ज़रूरी है क्योंकि हम पिछले दिन से बड़े होते हैं। नेक्स्ट, सिक्का उछालने पर हेड आएगा, ऊपर हेड आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है मगर ज़रूरी नहीं। पासा फेंकने पर ऊपर आठ आएगा, तो यहाँ पर भी जो जवाब है ये नामुमकिन है क्योंकि पासे में सिर्फ 1 से लेकर के 6 तक निशानात होते हैं। नेक्स्ट, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है मगर ज़रूरी नहीं। और जो आखिरी बयान था कल बादल होंगे, तो यहाँ पर भी हो सकता है, कल बादल आ सकते हैं मगर ये ज़रूरी नहीं। तो इस तरह से पहला सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, मश्क नंबर 3.4 का जो दूसरा सवाल है, एक डिब्बे में 6 मार्बल्स हैं जिनके ऊपर 1 से 6 तक के एदाद लिखे हैं। तो यहाँ पर इससे जुड़े हमें 2 सवालात के जवाबात देना है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, एक डिब्बे में 6 मार्बल्स हैं, तो हर एक मार्बल पर यहाँ पर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? 1 से लेकर के 6 तक नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर्स, हर एक मार्बल्स पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इस तरह से हम मान लेते हैं कि इस तरह से हर एक मार्बल्स पर एक एक नंबर लिखा गया है। तो पहला जो सवाल है, 2 नंबर लिखा अदद निकालने का एहतिमाल क्या है? तो अब इसमें 2 नंबर का मार्बल निकालने का जो एहतिमाल है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, उसको हमें मालूम करना है। तो एहतिमाल जो मालूम करना है उसका ज़ाबिता, इस सबक से जुड़े जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने ये तरीका बता चुका है कि एहतिमाल को किस तरह से मालूम किया जाता है। तो एहतिमाल मालूम करने का जो ज़ाबिता है, मुमकिना नताइज की तादाद, मुमकिना नताइज की तादाद बटे नताइज की कुल तादाद, नताइज की कुल तादाद। तो इस ज़ाबिते की मदद से हम क्या है, एहतिमाल या प्रोबेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर नताइज की कुल तादाद कितने हैं? तो यहाँ पर 6 मार्बल्स हैं, तो नताइज की जो कुल तादाद है यहाँ पर 6 है। अब 2 नंबर लिखा अदद निकालने का एहतिमाल है, यानी एक वक्त में कितने नताइज मुमकिन है? एक नतीजा मुमकिन है। तो ये जो एहतिमाल होगा 1/6, यानी 2 नंबर लिखा अदद निकालने का एहतिमाल कितना है? 1/6 है। कुल नताइज की तादाद यहाँ पर 6 हैं और इसमें एक वक्त में जो पॉसिबल रिजल्ट है, मुमकिना नतीजा है, कितना है? 1 है। यानी एक वक्त में हम एक नंबर यानी 2 नंबर को निकाल रहे हैं। तो 2 नंबर अदद लिखा मार्बल निकालने का जो एहतिमाल है वो 1/6 है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, 5 नंबर लिखा अदद निकालने का एहतिमाल क्या है? तो यहाँ पर भी वही ज़ाबिता का इतलाक होगा। तो यहाँ पर भी जो नताइज की कुल तादाद है कितनी है? 6 है। और मुमकिना नताइज, तो एक वक्त में हम जो मुमकिना पॉसिबल रिजल्ट है कितना है? 1 है। तो 5 नंबर लिखा अदद निकालने का एहतिमाल भी कितना है यहाँ पर? 1/6 है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरे सवाल का हल है। नेक्स्ट, मश्क नंबर 3.4 का जो तीसरा सवाल है, एक सिक्के को उछाल कर ये फैसला किया गया कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। आपकी टीम खेल शुरू करेगी, इस बात का एहतिमाल क्या है? तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो एहतिमाल मालूम करने का ज़ाबिता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो एहतिमाल मालूम करने का ज़ाबिता, जैसे कि पिछले सवाल में हमने कहा, क्या आएगा यहाँ पर? नताइज की कुल तादाद, नताइज की कुल तादाद, और यहाँ पर मुमकिना नताइज की तादाद, मुमकिना नताइज की तादाद। तो यहाँ पर
सिक्का उछाल कर ये फैसला किया गया कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, तो आपकी टीम खेल शुरू करेगी, इस बात का एहतमाल क्या है? तो सिक्का उछालने पर दो नताइज मुमकिन हो सकते हैं, एक हेड दूसरा टेल, इसके अलावा कोई नतीजा यहाँ पर नहीं हो सकता। तो नताइज की कुल तादाद यहाँ पर दो है, यानी हेड और टेल। तो अब यहाँ पर हमारी टीम खेल शुरू करेगी, इस बात का एहतमाल या तो हम पहले खेल शुरू कर सकते हैं या बाद में। तो यहाँ पर क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक वक्त में यहाँ पर एक नतीजा मुमकिन है। तो इस तरह से हमारी टीम या आपकी टीम खेल शुरू करने का जो एहतमाल है वो कितना है? 1/2 है। यानी टॉस जीतकर किसी टीम के खेल शुरू करने का जो एहतमाल है वो कितना है? 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर जो नताइज की कुल तादाद है, कुल नताइज दो हो सकते हैं, क्योंकि सिक्का उछालने पर या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और एक वक्त में जो नतीजा आएगा या तो हेड होगा या तो टेल। पॉसिबल रिजल्ट एक है, तो इसका जो एहतमाल है 1/2। तो इस तरह से ये तीसरे सवाल का हल है। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 3.4 यहीं पर मुकम्मिल होती है। ये इस सबक की आखिरी मश्क थी जो बिल्कुल मुख्तसर थी, इसमें बिल्कुल 3 सवालात थे, ये यहीं पर मुकम्मिल होती है और ये सबक भी पूरी तरह से मुकम्मिल होता है। तो एंड ऑफ पार्ट 7, यानी ये सबक का 7वां और आखिरी पार्ट था, ये यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो ये सबक पूरी तरह से 7 पार्ट में मुकम्मिल हो चुका है। जो तसव्वुरात पहले 3 वीडियोज़ में पेश किए गए और बाकी के 4 वीडियोज़ में इस सबक से आने वाली मशकों को, यानी मश्क नंबर 3.1 से 3.4 तक हल किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में और सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।